we have amongst us Shri Sukhi Bhaiya ji. I think we are fortunate that he is amongst us today and we are going to listen to him because it takes a lot of effort and you have to be there, you know, it has to come to you, you just don't get it. So this event is also part of the ACPR's ongoing activities about comparative philosophy and religion. The Academy of Comparative Philosophy and Religion, or Gurudev Ranade Mandir as we know it, is the brainchild. It's the institution that was formed by Gurudev Dr. R.D. Ranade. Now this is one modern mystic saint of India which we are very proud of because he is an intellectual, he is a mystic, he is an author, he is a thinker, deep thinker. And one of the greatest mystic saints of modern India, I would say. So his books which are available here, the Constructive Survey of Upanishadic Philosophy and also Bhagavad Gita as the philosophy of God realization are milestones in Indian philosophical research and writing. So this particular institution, as we see, we have grown up seeing this institution. The academy was started by Gurudev in 1924. He established it in 1924, 1st August, in Adhyatma Bhavan in Pune. And the cornerstone, the Bhumi Puja of this particular institution here in Belgavi was done in 1964 at the hands of Sri B.D. Jatti, who was then Finance Minister and then later became the Vice President of India. Incidentally, Dr. S. Radhakrishnan, the then President of India, was a disciple, he was a student of Gurudev Dr. Ranade because Dr. Ranade taught at Allahabad University. He was Dean and then he was the Vice Chancellor of Allahabad University. So, Gurudev was no more to see this building come to fruition, but Dr. Radhakrishnan himself said that he would come for the inauguration and he did come, which was in 1965. This particular building was inaugurated by the President of India in 1965. Last year, that is 2024, we celebrated the centenary of ACPR and year-long there were activities. I'm very proud to say that almost 25 activities were organized by the ACPR. I'm just going to tell 2-3 of them. It was inaugurated by Param Pujya Sarsang Chalak of the Rashtriya Swayamsevak Sangha, Shri Dr. Mohan Bhagwat ji and Padma Shri Sri Kamlesh Patel Daji of the Heartful and the Ramchandra Mission, Kanhavaram in Hyderabad. That was one amazing event that happened through ACPR. Then 2-day national seminar on the life, works and philosophy of Gurudev Dr. R.D. Ranade was organized in February in association with Indian Council of Philosophical Research, and also we had Anhad the Kabir Way. It was a very beautiful program done on the teachings of Kabir in a very musical way. We also had a 6-day national conference on life, works and philosophy of Gurudev Dr. R.D. Ranade in context of comparative philosophies and religions of the world. This was held between 8th and 13th February. This year, that is 29 June, we had a book release function and the valedictory ceremony of the centenary celebrations. It was organized in the presence of the Honorable Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, the Union Minister for Culture and Tourism, and 28 books of Dr. R.D. Ranade and 2 translations were released at the hands of the Honorable Minister, 1,000 copies each. You can imagine the mammoth task that was undertaken by ACPR. Now, ACPR runs solely on the basis of volunteers. It has just 2 paid employees. So you can imagine all this is happening through volunteers like you and me. And comparative philosophy and religion is the core, it's at the essence of, this is not a temple, this is a center for learning, to understand how Indian religions, Western religions, if you read Dr. Ranade's books or even if you read his disciple Radhakrishnan's books, you'll find that they are trying to show you that all the paths lead towards one common truth. So the essence is one God, one world, one humanity.
that is Sikhism, because we are so proud of this religion and its followers and the gurus. So we have today amongst us some visionaries also here who are seated. And on behalf of ACPR, I welcome Sukhi Bhaiya ji. Welcome to Belgavi. Welcome to ACPR. It's such an honor to be listening to you, and I think कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे हैं. I welcome हर्षद जी. आपका भी स्वागत है. And we also have Vice Chairman Shri Subramaniam Bhatt ji and trustees of ACPR are also here. We have BEd students amongst us today because they are the ones who are going to carry the torch forward. And also we have students from RPD College. So this is the future of India that's going to carry the light. दीप से दीप जलाने वाले जो बच्चे हैं हमारे, आप सबका भी ACPR की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ. Sukhi Bhaiya, as we call him, his name is Sukhwinder Singh. He was one of the youngest CAs India has ever produced. At the age of 19, he was already a CA. All of you who are at the age of 23, he had a firm with more than 50-60 people working for him. But his deep desire to search for something bigger in life and deeper in life led to the conquest, and with blessings of Sri Sri Ravi Shankar, he started traveling. Nearly 60 countries across Europe, Africa, US, Canada, South America. I mean, I have a list of countries which even if I go through it will not get over. Exceptionally, how do I say, experienced personality, who has been talking in UN, WHO, who has been sharing dioceses with the top people across the world to share how important it is to be happy and to share happiness, right? Because that is the most critical part of Sukhi Bhaiya. You know, Sukhi Bhaiya means Sukh. Okay? जो सुख को बांटते हैं वही है सुखी भैया. Okay? Without further regulation and delay, I would really want him to share a lot of insights. You know, today morning we were talking, I was asking him, what will you talk? And he said, wait. Let me figure out. So it is absolute delight. Trust me, I was asking him when he will come next to Belgaum, and he said, my dates are booked till next February. Okay? Every week for 52 weeks, out of 52 weeks, 48 weeks is traveling. Okay? Meeting people, meeting personalities, changing lives of people. We are absolutely blessed to have him amongst us, just as a person who is just happy. Just being in his presence. Yesterday we had a function for Guru Purnima where we had 400 people. And everyone left with just a delight and a smile on his face. So, Sukhi Bhaiya, all over to you to share Sukh. Okay? Have a great time. कैसे हो सब? बढ़िया हो? मुस्कुराते हो? खुश हो? मेरा नाम मोहन में जाता है। भाई सुखी भैया तो सुख देने आए, मतलब हो गया खत्म। अब इतना आपने बोल दिया, मैं क्या बोलूं? Have to make your life difficult. Make my life difficult. उधर लिखा है one God, one world, one humanity. और आज I would say I know a lot. I would actually
अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? हिंदी ज्यादा चलेगा? हिंदी चलता है? ये आपका यहाँ भाषा मेरे को डर लगता है। इधर नागपुर में गया, वो कहता है इधर पुल गिरेगा। मैं कहा पुल गिरेगा तो मैं क्या हो जाएगा? ऐसा बोलते हैं। टैक्सी लगेगा, इधर लगेगा भाई। टैक्सी लगेगा नहीं, टैक्सी चाहिए बैठने के लिए, है ना? हिंदी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया सब। I don't know much. I will tell you. I haven't learned. मैंने कभी किताबों से नहीं सीखा। मेरे को गुरुजी ने बहुत जल्दी ही दुनिया में घुमाया और मैंने लोगों के साथ रह के, कम्युनिटीज के साथ रह के सीखा। किताबों में जो बातें होती है वो किसी ना किसी का एक ओपिनियन होता है। यस एवरीबॉडी? अब उस ओपिनियन को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उस कम्युनिटी में जाना चाहिए, उस प्रदेश में जाना चाहिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी लेना, घर से बीबीसी का आयकर में जाना, उनके अलावा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ट्रैवल करता रहा दुनिया में अलग अलग जगह, मेरे को समझ में आया मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं तो सोचता था कि अपने को अपना कल्चर पता है, कुछ नहीं आता। फिर मैं जगह जगह जाके देखा तो जहाँ जहाँ लोगों के कल्चर्स, और चाहे वो मिडिल ईस्ट कल्चर थे, चाहे वो यूरोपियन, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हम सब में, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका अटेंशन कहाँ है, आपका अटेंशन सिमिलैरिटीज पे है या डिफरेंसेस पे है। नाम, रूप, खाना पीना, व्यवहार, ट्रेडिशन में हम बहुत अलग हो सकते हैं। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी। अगर ये वन गॉड पे हटा दें, वन वर्ल्ड पे हटा दें, ह्यूमैनिटी को लेके गुरु नानक देव का मैसेज किसी भाषा में नहीं है। गुरु नानक देव का मैसेज मैथमेटिकल है। He didn't say much, he said ik, one. He didn't even add anything after that. उन्होंने उसके बाद भी कुछ ऐड नहीं किया, उन्होंने बोला एक। अब ये पूरा अनंत जो दिखता है और नहीं दिखता है संसार, वो सब वन है, उस वननेस में हम पैदा हुए। आप आंखें खोलते हो तो आपको अनेक दिखता है, हाँ जी, yes or no? आपको अनेक दिख रहा है तो आपको वन ढूंढना किधर है? आपको वन इधर नहीं ढूंढना, आपको वन इधर प्रकट करना। ये बात समझ में आ रही? इधर तो अलग रहेगा, लेकिन वो एक होने का जो भाव है और एक समझने का भाव है, इधर प्रकट होगा। अगर आप इधर एक हो, इधर जितना मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इधर टूटे हो, इधर बिखरे हो, इधर खंडित हो, जितना मर्जी कोशिश कर लो आप इसको एक नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आए? हाथ खड़ा करो। बाकी सब शर्मा जी बैठे हैं, शर्मा रहे। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ सिमिलैरिटीज की बात कर सकता हूँ, कंपैरिजन कैसे करूँ। हाउ डू आई टॉक अबाउट कंपैरिजन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन? जब मैं दो हुआ ही नहीं तो मैं कंपेयर किसको करूँ? बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा आप समझे, मैं आपको थोड़ा सिख गुरुज के बारे में बताता हूँ, जितना मेरे को थोड़ा सा पता है। I feel very happy that I spend time in a state called I don't know. हाँ जी, जितना भी तुम जान लो, जितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली समझ में आता है यार मैं बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। जो मैं नहीं जानता, what I don't know is huge. Yes or no? Everybody? वो सर हो गया तुम्हारे, मैं सर नहीं हुआ, मैं कौन हूँ? हाँ तुम भी हुए, सर तो यहाँ सबके पास है। तो ये आपको बड़ा क्लियरली समझना है, या फॉर्मेलिटी में ज्ञान नहीं बात कर सकते, इसीलिए मैंने आपको बोला भैया सब मैं फॉर्मल हो गए तो क्या बात करोगे? वो रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा। इनफॉर्मल जब भाव होता है
जब अपनापन होता है इंसान तब सच में सीखता है। हाँ जी, समझ में आ रही? यस, आज तो हुई ना, ब्रिटिश आदत है कि अभी से बदल डालो, अच्छी रहेगी। तो गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ, कितने लोगों ने सिखिज्म के बारे में पढ़ा? पहले उसको थोड़ा जानोगे तभी तो आगे कुछ बात कर सकते हैं। नहीं बताना, कितने गुरु हैं सिखिज्म में? हैं? 9, 10? हाँ जी, कितने? अपना अपना नंबर लगाया जाओ। एनीबॉडी हु नोस? एक बार में बोलेंगे कितने हैं? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ जी, हाँ, ये आप पकड़ रहे हैं। फिजिकली गिना जाए तो 10 बॉडी वाले गुरु हुए, शारीरिक इंसानी रूप में हुए, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, सब गुरुओं की ज्योति ज्योत, उनका जो एसेंस है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बोला जाता है, और उनको ऐसा देखा जाता है कि वो एक लिविंग गुरु है। बात समझ में आ रही? कितने हो गए? आप जैसे भी नंबर दे दो, नंबर आपको ऊपर छोड़ता होगा। या अब आप उसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझे। गुरु नानक देव जी का जन्म, सिखिज्म के बारे में कुछ भी पता है? ज्यादा नहीं, हाँ, कुछ पता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ। या कबीर साहब थोड़ा पहले हुए, नामदेव जी और पहले हुए। बहुत महाराष्ट्र के संतों से भी, ये मैं आपको बताऊं, गुरु नानक देव जी was also inspired by the saints of Maharashtra। आपको मालूम है? बहुत जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जी is a compilation of 36 saints and only 6 are Sikhs। सिर्फ 6 सिख गुरु हैं उसमें, जो 30 अलग अलग गुरुओं की बानी है, उसमें नामदेव जी भी है, उसमें और भी बहुत सारे गुरु हैं, सूफी भी हैं, या हिंदू धर्म के भी हैं। और उस टाइम तो हिंदू और सिख वैसे भी अलग नहीं होता, ऐसा डिस्टिंक्शन ही नहीं था कभी, ये तो डिस्टिंक्शन अब आया। तो थोड़ा सा समझे अब कि मैं आई वांट टू मेक यू गो थ्रू द लिनिएज ऑफ सिक्स। जानना चाहेंगे? तो शक्ल तो दिखा दो यार। हाँ, आर यू ऑल हियर? हाँ जी। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारा मन इस कमरे से भाग जाता है। भागता ही नहीं भागता, थोड़ी देर बैठे सुनने मिलना, वो माइंड को आप बार बार इधर लाओगे तभी सीख पाओगे। सो गुरु नानक देव जी की जो आप उनको बोलो साक्षात्कार बोलो, उनका परमात्मा से मिलने, बचपन से बहुत सारे ट्रेड्स थे उनके, लेकिन 30 साल की उम्र में वो एक दिन सुबह सुबह, 2 बच्चे थे, शादीशुदा थे, तो एक दिन सुबह सुबह वो नहाने के लिए गए। एक रिवर है नॉर्थ में, उसका नाम है काली बेन। उस रिवर में वो डुबकी लगाने गए। अब डुबकी लगाए, उनके साथ बाला मर्दाना 2 उनके सेवक हमेशा रहते थे, साथी थे, सेवक क्यों बोलूं, उनके से साथी थे। तो जब वो डुबकी लगाए, 5 मिनट हो 10 मिनट हो, भारी ना, घबरा गए भाई, मर्दाना घबरा गए, और बाला उनके साथ, वो भी घबरा गए, भाई कहाँ गए, वो भी अंदर पानी में कूदे, गायब। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, घबराहट हो गई, खलबली मच गई, गए वो पूरे गांव में खलबली मच गई, भैया तो गुरु नानक देव जी गायब हो गए, कहाँ गए, सब लोग पानी में कूद रहे, बाहर निकल रहे, मिल ही नहीं रहे, पूरा परिवार आ गया, रो रहे, प्रॉब्लम में, दुख में बैठे हुए। अच्छा, कितनी देर पड़ोसी तुम्हारे साथ बैठेगा तुम्हारे दुख में? हाँ जी, थोड़ी देर ना, उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे, जो घर के लोग हैं वो बैठेंगे वहां पे। 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब सबको लगा कि वो तो गए, वो चले गए, लेकिन तीसरे दिन गुरु नानक देव जी बाहर, पानी से बाहर। तो कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, या एक रूहानी एक अनुभव, या उस परमात्मा से साक्षात्कार, किसी भी रूप में आप उसको ले सकते हैं। तो जब वो उससे बाहर आए तब उनकी आंखें नीची नहीं होती, उनकी आंखें ऊपर की तरफ चले, और चेहरे पे एक अलग शांति, और वो सिर्फ एक ही बात बोलते बोलते अपने घर की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि परमिशन नहीं है घर वालों से। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझें।
और वो एक चीज बोल रहे हैं बार बार, ना को हिंदू ना को मुसलमान। उन्होंने ये शब्द दोहरा रहे हैं बार बार। अब वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो गया भाई, इनको पता नहीं कहाँ से आए, क्या अवस्था में आए। तो वो अपने घर वालों के पास जाते हैं, अपनी वाइफ के पास जाते हैं, माता पिता को बोलते हैं मुझको इलाही बानी, उसका हुक्म हुआ है कि मुझको ये इलाही बानी मिली है और मैं अब वो सबको लेके ले जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या बानी मिली है तुमको? कहते हैं एवरीथिंग इज वन। अब वो वन क्या है, वो आपको खोजना है। 2, 3, 4 खाने बड़े सारे, व्यंजन बड़े सारे, कपड़े बड़े सारे, व्यंजन के पीछे भूख तो एक ही है ना। हाँ जी, कपड़ों को पहनने का भाव, ढकने का, आवरण का जो भाव है वो तो एक ही है ना। हाँ जी एवरीवन, किताबें कितने, स्टूडेंट तो एक ही, सब्जेक्ट तो एक ही है ना। तो वो आपको वो एक ढूंढना है अपने अंदर। गुरु नानक देव जी के सबसे खास, उनके जो सबसे प्यारे, उनके जो स्टूडेंट रहे वो भाई लैना। भाई लैना बहुत अच्छे परिवार से थे, पैसे वाले परिवार से थे, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते थे, लेकिन बाकी लोग उनसे थोड़े जेलस फील करते थे। क्यों? अब मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। भाई लैना जब गुरु नानक जी को ढूंढते ढूंढते आए, उस टाइम वो रोब्स वगैरह पहनते होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, तो वो खेत में बैठे अपने कीचड़ में कुछ घास वास बांध रहे ताकि वो गाय वगैरह को लेके जाना है। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बोला, ये मिट्टी में सना हुआ है, तुम उठाओ इसको लेके जाओ। और वो पापा जी को दे रहे हैं। होता है ना कि भाई हमारे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। तो भाई लैना ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने देखा, उन्होंने फट से सिल्कन कपड़े, सुंदर कपड़े पहने हुए, सोचा भाई उठाया, उन्होंने रख लिया और चल पड़े। कि गुरु का, जिसको गुरु देख रहे हो, गुरु स्वरूप मान रहे हो, गुरु का हुक्म हुआ तो तुमको सोचना क्यों है इधर उधर। उन्होंने उठाया और चल पड़े। ऐसे 2-3 टेस्ट लिए गुरु नानक देव जी ने। फिर उसके बाद उन्होंने उनको अपने गले से लगाया, तू तो मेरे अंग जैसा है, तू तो मेरा अंग ही है। उसके बाद से उनका नाम पड़ा गुरु अंगद। अब गुरु अंगद ये बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तो पंजाब में नहीं जानते, तो यहाँ तो मैं क्या बोलूं। गुरु अंगद was the one who wrote the script of पंजाबी। जो गुरुमुखी जिसको आप शब्द बोलते हैं, उस टाइम बोली में तो थी, क्योंकि बोली में उर्दू, हिंदी, पंजाबी भाषा बोली में थी, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी, उसकी लिखने का तरीका नहीं था। तो गुरु अंगद देव जी मेड अ यूनिक स्क्रिप्ट जो अलग से गुरुमुखी या पंजाबी भाषा के नाम से प्रचलित। अब उसको, अब उनकी जब वो उम्र में बड़े हुए, उनके सब्दी जी थे, या सब्दी बोलेंगे या रिलेशनशिप में आते थे, तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी। वो उनकी बड़ी सेवा करते थे, सुबह सुबह पानी भर के लाना, उनका ध्यान, मतलब इन हिज 70s, 48 की उम्र में वो अपने गुरु को मिले और 74 की उम्र तक वो उनकी सेवा करते रहे। आप सोचिए, उनको गुरु गद्दी मिली अंडर एज 75-76, 76 साल की उम्र में तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी, जिनको गुरु गद्दी मिली गुरु अंगद देव जी के पास। और वो भी मतलब बहुत अमेजिंग बात है कि उनकी आपस में इतनी घनिष्ठता थी, इतना क्लोजनेस था सेकंड गुरु और थर्ड गुरु के बीच में। आप देखिए, सुबह सुबह रोज उस उम्र में भी, 70 की उम्र में भी, कोई सुबह अपने गुरु के लिए बाल्टियां भर भर के ला रहा है, क्योंकि मेरे गुरु को, मेरे को सुख देना। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे? तो उस टाइम की रियलिटी है। अब वो गुरु, तीसरे गुरु जो अमरदास जी हैं, उनके गांव में एक छोटा बच्चा अनाथ हो गया, उसके माँ बाप चले गए, तो वो गांव से गुजर रहे थे, तो वो गए, उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा, उसको आशीर्वाद दिया। उस लड़के का नाम बाद में पड़ा रामदास। वो जब बड़े हुए तो गुरु साहब के आसपास ही पले बड़े। मैं आपको छोटा सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, बहुत लंबा में नहीं जा रहा। तो गुरु रामदास जी जब बड़े हुए तो बहुत गरीब, क्योंकि माँ बाप तो थे ही, बहुत गरीब थे। पंजाब में, नॉर्थ में, आई एम नॉट श्योर हियर, पर पंजाब में सर्दियों में काले चने को मसाले में डाल के बेचा जाता है सड़कों पर, बाजार में। यहाँ मिलता है ऐसा कुछ? हाँ जी, काला चना। तो वो बेसिकली चने बेचते थे,
और अपना निर्वाह करते थे। तो जो तीसरे गुरु हैं वो एक दिन सर्दी में अपनी बीवी के साथ बैठे हुए और बातचीत कर रहे थे कि उनको बीवी जी को चिंता है कि बेटी बड़ी हो गई है, बड़ी बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी की शादी करनी है, तो क्या करना है। तभी वो रामदास जी वहां से गुजरे सामने से, तो गुरु साहब बोलते हैं इससे बढ़िया तेरे को लड़का नहीं मिलेगा। अब बीवी जी गुस्सा आ गई, ये क्या बोल रहे हो, इतने बड़े गुरु के घर की लड़की ये छोले बेचने वाले से शादी करती है। वो कहते तू जानती नहीं इसको, ये कितनों को खिलाएगा। एंड यही बात हुई, उनकी शादी करेगी, उनको हुक्म हुआ, तीसरे गुरु जी ने उनको बोला तुम जाओ और एक नया गांव, एक नया कस्बा बसाओ, उसका नाम पड़ा रामदासपुर। वो रामदासपुर में एक था सरोवर, जिसका बाद में नाम पड़ा अमृतसर। आज जो अमृतसर शहर है वो गुरु रामदास जी ने बसाया था। और उस सरोवर की भी बहुत अनेक अनूठी कहानियां हैं। वो कहते थे कि कौवा जाता था तो हंस निकल के आता था, मतलब ऐसा कहानी है। उसकी एक छोटी सी कहानी सुनो, सुनेंगे कहानी? सर आप लोग को बुला रहे हैं। एक राजा के यहाँ बड़ी सारी बेटियां थी उसकी। तो राजा जब भी अपनी बेटियों से खुश होना चाहता था ना, उनको खाना पीना खिलाता था, फिर उनको वो जाके पूछता था मैं तुमको कैसा लगता हूँ, तो सब बेटियां बोलती थी गुलाब जामुन जैसे, रसमलाई जैसे, जो भी आपको मीठा अच्छा लगता है वैसा। एक लड़की बोलती थी आप मेरे को नमकीन लगते हो, नमक जैसे। तो राजा बोलता था ये कैसी इसका दिमाग खराब हो जी जी। तो मैं बड़ा राजा ना उसे चिढ़ने लगा था। तो उसने गुस्से में आके, सोची कहानी है, गुस्से में आके उसको एक जो इतना छिड़ गया, इतना सड़ गया, वो क्या कहते हैं कोड़ी, इसको कोड़ होता है, लेपर, एक लेपर के साथ उसका ब्याह कर देते। अब वो महलों में पड़ी, हम इतनी, वो अपने पति को ले लेके घूमती, तो घूमते घूमते वो अमृतसर में पहुंची, वो सरोवर के पास पहुंची। तो वो उसको सुनाई दिया गुरु का शब्द, कहते हैं मैं गुरुद्वारे जाके थोड़ी देर जाके बैठ के ध्यान करके आती हूँ, आपके लिए थोड़ा प्रसाद भी ले आऊंगी, आप यहीं बैठे। वो बैठे। अब वो जो आदमी है वो देखता है कि वहां पे जो भी पक्षी जा रहा है, डुबकी लगाता है, बाहर आता है, उसका रूप रंग बदल जाता है। कहते कैसे, हाजी में वो उसके पास जाता है और फिर अपना एक हाथ डालता है उस पानी के अंदर, बाहर देखता है हाथ एकदम ठीक हो जाता है। तो वो पूरा उसमें डुबकी लगाता है, लेकिन अपनी एक उंगली बाहर रखता है बीवी को दिखाने के लिए। तो वो पूरा कहते हैं एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम यंग मैन की तरह वो बाहर आता है। अब वो वहां बैठा उसकी वेट कर रहा है, बीवी आके कहती है मेरा पति कहाँ गया, वो ढूंढ रही है, तो उधर पति को परेशान होती है वो। तो वो कहती नहीं तूने कुछ कर दिया मेरे पति को। कहते नहीं मैं ही हूँ, ये सरोवर में बहुत क्वालिटीज हैं, अद्भुत क्वालिटीज हैं, उसमें आज भी सरोवर में वो लिखा है। आज अगर आप जाओ, दो गुरुद्वारे हैं सिखिज्म में, एक बंगला साहिब है और एक अमृतसर, जिसका पानी को अमृत की तरह पिया जाता है। हाँ जी पता है क्या, चलो आज पता चल गया। दूसरा गुरुद्वारा कौन सा है? बंगला साहिब दिल्ली में, उसका भी मैं नाम, उसका भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। तो वो फिर अपनी उंगली दिखाता है, देख मेरी उंगली खराब है, वो फिर डालता है उस सरोवर में, हाथ खोलता है, निकालता है, तो वो एकदम ठीक हो जाती है। ये तो चमत्कारिक बात है। तो वो लड़का एक्चुअली कहीं का प्रिंस होता है, वो वापस अपने देश जाता है और अपने पिता को मिलता है। वो पिता भी हैरान हो जाता है कि बेटा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसकी खुशी में, और उसकी शादी की खुशी में बहुत बड़ा भोज रखते हैं और लड़की के पिता को बुलाते हैं। अब लड़की के पिता को बुलाते हैं, लड़की तो जानती है पिताजी को बुलाया, वो तो उसको पता नहीं। तो वो खाने में सब जगह हर चीज में मीठा 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 डाल देती है। माफ कीजिएगा, वो गुजराती की तरह नहीं, तो हर चीज में मीठा मीठा डाल देती है और बहुत ज्यादा मीठा डाल देती है। तो वो बेटा खाता है, हर चीज खाए, उसको मीठा लगे और बड़ा गुस्सा है, कहते खाने में मीठा कौन डालता है, ये क्या बात है। तो वो कहती है, वो आती है, कहती है पिताजी पहचाना मुझको। कहते हाँ तुम यहाँ कैसे। वो अपनी कहानी बताती है, कहते आप ही ने तो कहा था कि आपको मीठा मीठा पसंद है, मैंने तो आपको कहा था आप बिल्कुल नमकीन लगते हैं, कोई भी खाने की चीज है जिसमें नमक ना पड़ता हो और टेस्ट अच्छा मत हो, मेरे को तो आप सबसे ज्यादा पसंद हो।
गुलाब जामुन तो बाद का डिश है, मेन डिश तो नमक से बनता है, जो सारा खाना नमक से बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये वो कहानी है जिससे अमृतसर की कहानियों को भी जोड़ा जाता है कहीं कहीं जगह। तो अमृतसर वो बना, उसकी नींव रखी पांचवें गुरु ने, अपने पांचवें गुरु पे आता हूं, तो रामदास जी जो चौथे गुरु हुए, उन्होंने अमृतसर शहर रामदासपुर बसाया। वो वहां बैठ के उस अमृतसर के सरोवर को बड़ा कराते थे। उसकी जो छोटा था उसको वो एक जगह पे बैठ के बड़ा कराते थे। उस पे आज भी एक बेरी का पेड़ है जहां पे वो गुरु साहब बैठा करते थे। अब इनके बेटे हुए रामदास जी के, उनमें से सबसे छोटे थे गुरु अर्जन देव जी। बहुत ही प्यारे पोएट थे, मतलब पोएट थे वो, तो इतने प्यारे थे, वो लिखा करते थे। तो उनके जो बड़े दो भाई हैं उनसे बड़े जेलस फील करते थे। तो अब वो दुर्गंधी है, अब परिवार में आ रही है, पहले नहीं थी ऐसे, अब परिवार में आ रही है या? तो ये एडिट कर देना, अपने पास ही रखना। तो वो दुर्गंधी, जब वो दोनों जो बड़े भाई थे उनको पता था कि ये इनके फेवरेट है, पिताजी के फेवरेट, तो पिताजी ने उनको कहीं भेजा कि तुम जाओ और वहाँ इस गांव में बैठो और जब मैं बुलाऊं तभी आना। तो जो अर्जुन देव जी थे वो चले गए। अब वो वहाँ बैठे बैठे उनको तड़प हुए कि मेरे को अपने गुरु के दर्शन, मेरे को गुरु के उस माहौल में बैठना है, सत्संग में बैठना है, उस जगह बैठना है, मेरे को कहाँ दूर गाँव भेज दिया। वो ना लेटर लिखनी शुरू करी। वो लेटर आज भी बानी में, बानी जो हम गुरबानी बोलते हैं, उसमें शब्द हजारे के नाम से। तो उन्होंने पहली लेटर लिखी, वो उनके बड़े भाई साहब ने रोक ली, दूसरी लेटर लिखी, फिर रोक ली, तीसरी लेटर, अब उन्होंने कंटिन्यूएशन में लिखी, चौथी लेटर किसी तरह गुरु साहब के हाथ में पड़ गई। अब वो लेटर उन्होंने खोली और जब पढ़नी शुरू करी तो उसमें कंटिन्यूएशन था। वो कहते ये लेटर है, इससे पहले भी आई होंगी। कहा किसने रोका ये सब? तो फिर उनको बुलाया, उनसे माफी मंगवाई, गुरु साहब को वापस मंगवाया। फिर वो लेटर्स अगर आप पढ़ें, शब्द हजारे के नाम से अगर गूगल करेंगे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। जैसे हम पतंजलि पढ़ते हैं, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, नारद के भक्ति सूत्र। कितने लोगों ने सुना नारद भक्ति सूत्र? नहीं पता? हाँ, पढ़िएगा नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने जो भक्ति सूत्र लिखा है और शब्द हजारे हैं, आप अगर वो पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा सिमिलर ही है। उसमें प्रेम की पराकाष्ठा देखी है अपने गुरु के प्रति। अब ये खत्म होता है तो फिर मैं जस्ट आपको छोटा छोटा फटाफट आपको गुजार रहा हूँ एक एक पीढ़ी से। उस टाइम नानक के टाइम बाबर आ चुके थे हिंदुस्तान में, और गुरु नानक ने उसी टाइम प्रेडिक्ट कर दिया था कि बाबर अब यहाँ आएगा, इसकी आगे पीढ़ियां बैठेंगी और पीढ़ी इस देश पे राज करेंगे। वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था गुरु नानक देव जी ने। तो अब उसके बाद जब बाकी की जनरेशन आई, आपको ये मान के भी बड़ी हैरानी होगी कि शाहजहां गुरु द्वारे गए थे, गुरु साहब को मिलने गए थे, लेकिन सबसे पहले सबके साथ पंगत बोलते हैं खाना जब नीचे बैठ के खा रहे थे, पहले गुरु साहब के हुक्म था कि पहले खाना खाओ फिर गुरु साहब को मिलने जाओ। जब शरीर शांत हो जाए तभी बुद्धि में कुछ जा सकता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आप गुरु की वाणी और गुरु के शब्दों को नहीं सुनते, भूख तो नहीं लगी अभी आपको? हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो वहां पे जब ये सब हो चुका था, जो समाज वहां का बदल चुका था, तो गुरु साहब के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट किया तो उनको जेल में डाला गया, उनको उनकी धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी गई। तो गुरु साहब ने ना बोला। तो ये पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की बात कर रहे हैं, उनको बहुत यातनाएं दी, लेकिन जो उसका लोकल वहां का जो राजा था, जो मुसलमान राजा था, उसकी बीवी उनको मानती थी। वो चुपचाप कहते हैं रात को गई, अपने सारे जेवर दिए और उनको छुड़ाया, और उन्होंने बाद में बहुत यातनाएं दी। सिख जगत में सबसे ज्यादा ध्यानी किसी को बोलते हैं तो गुरु अर्जन देव जी को बोलते हैं। उनको गरम गरम तवे पे बिठा के नीचे से आग लगा के ऊपर से रेत गरम गरम डाल के यातनाएं दे दे के मारा। तो उनको अपने पिताजी को
अपने पिताजी की डेथ इतनी बुरी हर्ष से होते हुए देखी, जो उनके बेटे हुए गुरु हरगोविंद, हम छठी पीढ़ी पे आने भाई, 6th गुरु हरगोविंद, उन्होंने फिर तलवार उठाई, उन्होंने मार्शल आर्ट शुरू किया, उन्होंने अकाल सेना बनाई। उन्होंने कहा कि अधर्म को अपने ऊपर सहना भी गलत बात है, गलत लोगों का अपने ऊपर यातनाएं सहना वो ठीक बात है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो तलवार उठा के उन्होंने मैसेज दिया, मीरी और पीरी, अंदर से हम पी रहे हैं, अंदर से हम खुश हैं, सुखी हैं, अंदर से हम मस्त हैं, लेकिन अगर कोई इनजस्टिस करेगा, अगर कोई खराब चीज करेगा तो तलवार भी हाजिर है, हमको डिफेंस के लिए तलवार उठानी पड़ेगी अपने समाज को बचाने के लिए। Does it make sense? Everybody? So गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मीरी और पीरी का नारा दिया। उनके जो पोते हुए वो गुरु हर राय हुए। उनके जाने के बाद, गुरु हरगोविंद जी के जाने के बाद उन्होंने टेक ओवर किया गुरु हर राय ने, और उन्होंने अलग अलग जगह सत्संग और अलग अलग जगह प्रचार किया। जैसे सत्संग समझते हैं, तो सब जगह स्कूल्स ऑफ थॉट एंड सत्संग उन्होंने तैयार किए। गुरु हर राय के बेटे थे गुरु 5 साल के गुरु हरि कृष्ण। आज दिल्ली में उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जो मैं बंगला साहब की बात कर रहा हूँ। तो गुरु हरि कृष्ण 5 साल के थे, 8 साल में तो वो चले गए थे, क्योंकि 8 साल में हैजा हुआ था उस टाइम। हैजा, अंडरस्टैंड, महामारी जैसे कोरोना आया यहाँ पे, उस टाइम वहां पे हुआ था। तो 5 साल के 6 साल के गुरु साहब जगह जगह जाके खाना बांट रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने एक जगह पे बंगला में बोला इधर खोदो, तो वहां से एक फाउंटेन निकला पानी का, उन्होंने उसको अपने अंजलि में दिया और संकल्प किया कि मैं इस सारा जितना भी है प्रॉब्लम है, ये मेरे अंजलि में आ जाए और मैं पी जाऊं, मेरी सारे जो लोग हैं वो ठीक हो जाए। तो अमृत की तरह वो आज भी कितने 300-400 350 400 साल हो गए, आज भी बंगला साहब में वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर निकलता है और उस पानी से लोग भर के ले जाते हैं। किसी को बीमारी हो, कुछ हो, तो वो पीते जरूर है उसको एज एन अमृत। तो ये भाव की बात है, करेक्ट, ये भाव की बात है, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब गुरु हरकृष्ण जब मरने वाले थे, उनकी हैजा इतना ज्यादा हो गया, 8 साल की उम्र में, सोचिए वो गुरु थे, 3 साल के 5 साल में बने और 8 साल की उम्र में शरीर छोड़ के जा रहे। जाते जाते संगत ने पूछा, आप तो जा रहे हो, नेक्स्ट कौन? तो उन्होंने जाते जाते बोला, बाबा बकाले। बकाला एक गांव है जहां पे गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु, वो वहां पे ध्यान कर रहे थे। अब बकाला में एक जत्था, एक ग्रुप गया गुरु साहब को ढूंढने। वहां पे 23 आश्रम खुले हुए, जो भी गुरु साहब के चाचा जी, मामा जी, ताया जी, पड़ोसी जी, ये भी सब अपने अपने गुरु बन के अपने अपने आश्रम, अपने अपने सब डेरे, पंजाब में डेरा बोलते हैं, और डेरा खोल के बैठे हुए थे। उस जत्था, जो ग्रुप जो ढूंढने गया था गुरु को, उसमें एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन अपना जब शिप में अपना सामान लेके आ रहा था, तो वो सामान लाते लाते उसका शिप डोलने लगा, तूफान आने लगा, तो वो घबरा गया। कहता, बाबा जी मेरे को बचा लो, अगर मैं बचेगा सब कुछ होगा, मैं 500 अशरफी आपको दान दूंगा। आप सोचो 400 साल पहले 500 अशरफी बहुत बड़ी बात होगी। हाँ जी, आज भी 500 रुपए देने में हमको दिक्कत आती है। तो वो आए, उसी ग्रुप में थे, वो जिन जिन बाबा जी को मिलते थे उनके वहां 2 अशरफी दान में देते थे और उनके आ जाते थे। 23 के 23 को देख लिया उन्होंने, उनको लगा नहीं कि इनमें कोई गुरु वाली बात है, तो वो निराश होकर जा रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, वो कहता है, ओ भाई उसको भी जाके देख लो। कहते, किसको जाके देख लो? वो नदी किनारे बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, कौन है? आप खुद ही जाके देख लो, शायद वो ही हो आपका। तो वो सब गए, वहां गुरु तेग बहादुर जी बैठे हुए एक पेड़ के नीचे ध्यान से, अब वो सारे के सारे लोग उनके पास बैठ गए। अब कितनी देर आंख बंद करके ध्यान करके बैठेंगे? ये तो एक पर्टिकुलर काम के लिए है, घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे। फिर वो भी उठे, वो जो बिजनेसमैन है उसने 2 अशरफी निकाली, उनके सामने रखी और उनके जाने लगे। गुरु तेग बहादुर जी ने आंख खोली, मुस्कुराए, काका जी तुसी 500 कही सी, 2 दे रहे हो, तुमने तो 500 अशरफियां बोली थी, तो
तो तुम 2 दिन ही जा रहे हो, तो सडनली वो सब मुड़ते हैं, अरे बाबा इनको कैसे पता? तो वो समझ में आए कि गुरु तेग बहादुर एक रूहानी, एक गहरी गुरु शक्ति है, और वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बेटे थे। तो गुरु हरि कृष्ण जी के बड़े चाचा जी या जो ताऊ जी जैसे भी लगे, उनके रिश्ते में आते थे। तो वो गुरु तेग बहादुर जी को लाके इस्टेब्लिश किया गया, और फिर एक जत्था थोड़ी देर चला उनका सब कुछ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी, हम गुरु नानक देव जी को जानते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को जानते हैं, बीच के किसी को भी गुरु के बारे में हम जानते नहीं जानते। तो गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, गुरु साहब सत्संग में बैठे, गुरु गोविंद सिंह जी बैठे, सारा सत्संग चल रहा है, तो कश्मीर से पंडित आए। उन्होंने बोला कि हम पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमको मारा जा रहा है, औरंगजेब बहुत तंग कर रहा है। तो औरंगजेब 40 किलो जनेऊ रोज जला देता था। बात समझ में आ रही? 40 किलो जनेऊ रोज जला देता था। इसका मतलब है कि उतना या तो कन्वर्ट होगा या मारे गए। समझ में आ रही है? तो उन्होंने जब उनके पास आके बोला कि गुरु साहब आप हमको बचाओ, हम बहुत आशा लेके आए हैं आपके पास, तो गुरु साहब ने अनायास बोल दिया किसी बहुत बड़े संत की कुर्बानी लगेगी तब जाके ये रुकेगा। अब वो 9 साल के गोविंद सिंह बैठे हुए, गोविंद राय नाम था, गोविंद सिंह बाद में हुआ, गोविंद राय नाम था। वो कहते हैं आप जैसा कौन संत होगा बड़ा बाप पिताजी? वो अपने बेटे की मुंह से निकले हुए शब्द को देख के सन्न हो गया। हाँ ये क्या? उन्होंने उसको हुक्म दिया कि परमात्मा का हुक्म हुआ है इसके थ्रू, उन्होंने वो चल पड़े। वो तैयार होके अपना पूरी तैयारी करके, पूरा सत्संग, पूरा संत रो रहा है, बोल रहा मत जाइए आप दिल्ली, आप जाएंगे तो आपके साथ अत्याचार होगा, ऐसा ऐसा होगा। कहते नहीं मैं जाऊंगा, मैं अपने संघ के लिए, अपने समाज के लिए, अब मेरे को अपनी जान भी देनी पड़े तो दूंगा, क्योंकि मेरे को उनको बचाना है। तो वहाँ गए और हिस्ट्री से कि उनको उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। वहाँ पे जाके जो भी वहाँ पे हुआ पता है आप लोगों को? ये गुरु तेग बहादुर जी को पुरानी दिल्ली में एक गुरुद्वारा है शीशगंज, वहाँ पे उनका शीश कहते जब काटा जा रहा था तब एक बड़ी आंधी आई, तो एक भक्त उनका बॉडी ले गया और एक भक्त उनका शीश ले गया। उन्होंने अपने घर पे रख के घर जला दिया ताकि किसी के हाथ ना आए। तो एक जगह शीशगंज गुरुद्वारा है, और पार्लियामेंट जो हमारा है दिल्ली का, उसके पास एक रकाब गाँव है, तो वहाँ पे गुरुद्वारा बना रकाबगंज, तो वहाँ पे रकाब गुरुद्वारा। अब जब ये सब हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बचपन से ही, ऑफ कोर्स ही वाज ग्रेट इन पर्शियन, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, वो सब लैंग्वेज उन्होंने सुनी, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट्स, सैनिक बनना और अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार की। और एक चीज मैं आपको यहाँ खड़े खड़े एक फक्र से कह सकता हूँ, there were five reasons why he started the खालसा पंथ। खालसा पंथ उन्होंने शुरू किया। उससे पहले सिखिज्म was not known as Sikhs as separate। मेरा मानना है कि सिख और हिंदू एक ही हैं, एक ही जड़ से। गुरु नानक देव जी तो कभी भी सिख कहलाते ही नहीं थे। उनके माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम मेहता कालू। उस टाइम तो सिखिज्म का कोई शब्द भी नहीं होता था। सिख का मतलब है सीखने वाला, a student who is a perpetual student। Is it good to be a perpetual student? Yes. Why? Because I don't know. If you think you know, then you will stop your learning process, isn't it? Yes, sir. So if you live with this mindset called I don't know, तो आपका जीवन मेरे हिसाब से सीखने वाला बन जाए। सच्चा सिख वो नहीं है जो कपड़े पहनता है, सच्चा शिष्य वो नहीं होता जो सिर्फ धोती कुर्ता दाढ़ी बढ़ा के आ जाए ना। सच्चा शिष्य वो होता है जो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। ये बात समझ में आ रही है? उसके व्यवहार में गुरु का ज्ञान झलकता है। ये बात समझ में आ रही है? गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर क्या किया तो सब जानते हैं। बड़े होकर उन्होंने आर्मी बनाई, खालसा पंथ बनाई, एंड वन ऑफ द रीजन, व्हाट वाज द रीजन? इमेंसिपेशन, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन folk। आपको हैरानगी होगी उस टाइम इन द नॉर्थ women were bought and sold in the market। हाँ जी,
उन्होंने कहा जिस देश में औरत का सम्मान नहीं है वो देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने सारे यूथ को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला वन ऑफ द रीजन दैट यू विल फाइट अगेंस्ट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। तो उसके बाद खालसापन 1699 में पहली ये जो अपना अप्रैल के महीने में बैसाखी मनाते हैं उस दिन उसका स्टार्ट हुआ। और एक सिख वे ऑफ लाइफ टू प्रोटेक्ट, उसमें सिर्फ दो ही भाव अगर आप समझ पाए तो दो ही भाव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 इज वन, एक। नंबर 2, कहीं भी तुम इनजस्टिस देखो, कहीं भी तुम प्रॉब्लम देखो, कहीं भी तुम इश्यू देखो, डू नॉट कीप क्वाइट, स्टैंड अप एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। सिखिज्म की ये दो ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट। सब एक है, हम किसी में विभाजन नहीं देखते, किसी में वो नहीं करते, सब एक है। लेकिन अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए खड़ा होके आपको आवाज उठानी। हाँ जी, समझ में आ रही? और ज्यादातर ये आवाजें घर के अंदर ही उठानी पड़ती है। घर के अंदर ही बड़ा कुछ हो रहा होता है, बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो उठाना है आपको बात, धर्म के साथ चलना है। ये गुरु गोबिंद, और उन्होंने अपने चारों बेटों का वॉर्स हुई बहुत सारी, और उस वॉर्स में 23 साल वो गुरु गोबिंद सिंह जी वॉर लड़ते रहे। किस लिए? ताकि हमारा हिंदुस्तान बच जाए। उनके पिताजी तेग बहादुर इज कॉल्ड हिंद की चादर। हाँ जी, हिंद की चादर जो नाम है वो गुरु तेग बहादुर जी का है, कि अगर वो ना होते तो आज ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म खत्म हो गया। उनको बचाने वाले, उनके अगेंस्ट खड़े होने वाले और लड़ने वाले धर्म के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चों को कुर्बान किया। और रोए नहीं वो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बड़ी सुंदर शब्द गाया कि साच कहूं सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अंग संग वाहिगुरु, अंग संग वाहिगुरु, अंग संग वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, अंग संग वाहिगुरु। वो कहते मेरे सारे अंग संग वाहिगुरु की शक्ति है। वो एक शक्ति है जिसके बीच में मैं जी रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ। मैंने प्रेम के लिए ये तलवार उठाई, मैंने लड़ने के लिए नहीं, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने के लिए ये तलवार, किसी को मारने के लिए नहीं। बहुत मेरे हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा गुरु साहब का एग्जाम्पल ही नहीं है जिसने तलवार उठाई। हाँ जी, सुनो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप जस्टिस के लिए जीते हैं और एकता को समझते हैं, उसके लिए कभी कभी आपको कठोर कदम उठाने पड़ते। वननेस की बात करूं तो पूरा का पूरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है इसी सभ्यता से उपजा। जितने भी संत हैं वो इसी सभ्यता से उपजे। कबीर साहब के इतने सारे दोहे हैं उसके अंदर, नामदेव जी के इतने सारे उनके शब्द हैं उसके अंदर कि मैं आपको सब गिना सकता हूँ। सुनोगे? एक सुनाओ नामदेव जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, सुनोगे? पक्का? फिर सर ढको, मर्यादा है, रुमाल है, चुन्नी है, सर ढको, सर ढकना पड़ेगा। शब्द सुनाने के लिए तो मेरे को आपको सर ढकवाना पड़ेगा, मेरे को बैठना पड़ेगा। हाँ, सर ढकिए, रुमाल उठाइए। नहीं तो टिश्यू पेपर दे दो।
हाँ जी, सुनेंगे नामदेव जी का शब्द गुरु नानक देव जी की आशा रात में गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। कैसे मन तरेगा रे, कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर बिखे को बना, संसार सागर बिखे को बना, झूठी माया देख के भूला रे मना, झूठी माया देख के भूला रे मना, कैसे मन तरेगा रे, कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर बिखे को बना, संसार सागर बिखे को बना, पार ब्रह्म जे चीन सी आशा तेना बावसी, पार ब्रह्म जे चीन सी आशा तेना बावसी, रामा भक्ते चेतियले, रामा भक्ते चेतियले, अचिंत मन रागसी, अचिंत मन रागसी, कैसे मन तरेगा रे, कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर बिखे को बना, संसार सागर बिखे को बना, चीपे के घर जन्म दैना, गुरु उपदेश बैला, चीपे के घर जन्म दैना, गुरु उपदेश बैला, संत के परसा नामार बेतुला, कैसे मन तरेगा रे, कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर बिखे को बना, संसार सागर बिखे को बना, झूठी माया देख के भूला रे मना, झूठी माया देख के भूला रे मना, कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर मिट्टी का बना, संसार सागर मिट्टी का बना, संसार सागर मिट्टी का बना। थोड़ा सा नामदेव जी के बारे में बताता हूँ और फिर खालसा पंथ की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। And then we can talk about, if you have any questions, you can ask me any question.
नामदेव जी एक बड़े छोटे दरिद्र परिवार से थे। हाँ जी, यस। आज भी हम ये चीज नहीं छोड़ पाए, ऊंच नीच जात पात ये वो हम नहीं छोड़ पाए, जरूरी है छोड़, मेरे को ऐसा लगता है। नामदेव जी को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, पूजा करने के लिए मुश्किल होती थी, वो बहुत दुख होते थे, तड़पते थे। किसी एक ने बोला उनको कि भाई तेरे को शिव जी की पूजा करनी है, तेरे को इस समय जाना है सब कुछ, तो तू गुरु कर, तेरे पास गुरु नहीं है। तो अगर मैं गुरु कहां से ढूंढूं? तो एक वो मंदिर के पीछे एक गलियारे में एक पकड़ बाबा लेटे हुए थे। वो कहते इनके पास चले जा, ये तेरे को गाइड कर देंगे, शायद यही हो तेरे को। तो वो उनके पास जाते हैं और क्या देखते हैं, एक बड़े बुजुर्ग इंसान हाथ ऐसे लेटे हुए हैं और उनके दोनों पांव शिवलिंग के ऊपर। नामदेव जी को गुस्सा आ गया, बड़ा ये क्या कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो, भगवान की प्रतिमा के ऊपर तुम पांव रख के बैठे हो। तो वो पकड़ बाबा बोलते हैं, अरे मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, थका हूँ, तो ऐसा कर मेरा टांग हटा दे शिवलिंग को। तो वो नामदेव जी उसका पांव उठाते हैं, साइड में करते हैं, एक शिवलिंग फिर प्रकट हो जाए। वो जिधर जिधर उसका पांव हटा के अलग करें, वहां शिवलिंग प्रकट हो जाए। उनको समझ ही ना आया ये क्या हो रहा है, ये चमत्कार है, भ्रम है, क्या हो रहा है। वो कहते तुम चिंता न कर, आंख बंद करके थोड़ी देर यहाँ बैठे। तो वो आंख बंद करके बैठे, उनका ध्यान रखे। फिर जब आंख खोल के, तो ये शब्द उन्होंने बाद में लिखे, क्या जब मैं आंख खोलता हूं तो मेरे को क्या दिखता है, झूठी माया देख के भूला रे मना। जब मैं आंख खोल के देखता हूं मेरे को दो दिखते हैं, तीन दिखते हैं, अनंत दिखते हैं। लेकिन जब मैं आंख बंद करता हूं, गहरे में जाता हूं, तो मेरे को क्या दिखता है, कुछ नहीं, नथिंग। दैट नथिंग जिसको भगवान बुद्ध ने उसको एम्प्टीनेस की बात की, वो नथिंगनेस इज द वन, वही एक वननेस है, वही एक है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए, झूठी माया देख के जो आप खुली हुई जिंदगी देख रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो टूट जाएगी, वो मिट्टी की तरह बह जाएगी। आया ना एवरीबॉडी, यस और नो? तो इसीलिए इस माया वाली बदलने वाली दुनिया में अपना इतना ज्यादा अटेंशन नहीं डालना। अगर सच को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो आंख बंद करनी पड़ेगी। दर्शन आंख खोल के नहीं होते भैया। हाँ जी, हम तीर्थ पे जा रहे हैं दर्शन करने, किसके? आंख खोल के दर्शन नहीं होते। आंख खोल के दृष्टि से, दृश्य से क्या दिखता है, दुनिया, जगत नजर आती है। आंख बंद करेगा, दर्शन अंदर की बात है, अंदर दर्शन होते हैं। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? झूठी माया देख के भूला रे मना। हाँ, दो लाइनें हो रही हैं, मैं थोड़ा जल्दी से समझा देता हूँ। पार ब्रह्म जे छीनसी, ये नामदेव जी के शब्द हैं। पार ब्रह्म जे छीनसी आशा दे ना भाव से। जिसको पार ब्रह्म की, परमात्मा की टेस्ट की इच्छा है, आप उसको आज की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? Anyone scientific bent of mind people of science, आज की परमात्मा को आज की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? I'm waiting, one word. हाँ? अरे नहीं यार, हाँ? हाँ? कॉन्शियसनेस थोड़ा सा एसोटेरिक हो गया। अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे, एनर्जी एंड क्वांटम। हाँ जी, आजकल सब क्वांटम की बात कर रहे हैं। दैट इज द क्वांटम वी आर टॉकिंग अबाउट। पार ब्रह्म जे छीनसी आशा ते न भाव से। अगर तुमको उस लेवल पे जाना है, कॉन्शियसनेस या क्वांटम के लेवल पे जाना है, इच्छाओं में और आशाओं में तुम्हारा मन नहीं होना चाहिए। क्यों? एनीबॉडी? भगवान कृष्ण ने भी यही बोला। अगर आप भगवत गीता उठाएंगे, भगवान कृष्ण, मैं कल से शुरू कर रहा हूँ भगवत गीता फॉर यू या यंगस्टर्स के लिए। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? वैसे आपको बताना नहीं चाहिए, मैं आपको, आप भैया को बता सकते हैं, कभी मैसेज करके मेरे तक आंसर पहुंच जाएगा। भगवत गीता के चैप्टर 2 में
क्वांटम की नाम है, क्वांटम मैसेज। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पढ़ाई करिए नहीं करिए ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं आप सब लोग को चैलेंज देके जाता हूँ, एक होमवर्क देके जाता हूँ, चैप्टर 2 खोलो, उसमें लिखा हुआ है 5200 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये चीज मेंशन की है, और आज तक हमने उसको डिस्कवर नहीं किया। एग्जैक्टली यही लिखा, यू नो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? देखो, बहुत बढ़िया। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अपने कल्चर से जो इंसान नहीं जुड़ेगा वो बड़ी जल्दी उखड़ जाएगा जिंदगी से। बात समझ में आ रही है? अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहिए एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमिंग बैक, पार ब्रह्म जे छीनसी आशा ते न भावसी। इच्छाओं और आशाओं में क्यों नहीं होना चाहिए? जिसको परमात्मा से जुड़ना हो। हाँ, परमानेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्ट। कभी-कभी चेंज होता है, हर समय चेंज होता है, कभी कभी नहीं। हाँ जी, अरे थोड़ा बुद्धि लगाओ। यस, एंड थोड़ा सोचो, बड़ा सिंपल है। अच्छा, इच्छा अभी की होती है क्या? इच्छा कब की होती है? होप कब की होती है? तो अगर आपको सत्य के साथ जुड़ना है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, तो फ्यूचर की सोचते रहोगे तो कैसे प्रेजेंट से जुड़ोगे? जिसका मन फ्यूचर में है वो तो सत्य से टूट ही गया ना। हाँ जी, पार ब्रह्म जे चीनसी आशा ते न भावसी, रामा भगत चेती हरे, अचिंत मन रांसी। तेरे को बिना चिंता वाला खाली मन रखना था, तूने क्या कर लिया? भर भर के पता नहीं क्या क्या भर लिया। कोई डॉक्टर है आपको? कोई डॉक्टर साहब है। अगर आपके सर पे पड़े डंडा और आप भूल जाओ तो भक्ति कैसे करोगे? मेरे को बताओ। मैं किसका भक्त था यार? उनका नाम क्या था? दाढ़ी वाले लंबे बाल, मोर फूल लगाते थे, क्या नाम था? इफ यू आर फिजिकली डिबिलिटेटेड, फिजिकली आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, आपकी मेमोरी चली जाए, मेमोरी एमनीशिया हो जाए, भक्ति कर लोगे? नहीं होगी सरकार। इसलिए अपनी भक्ति का ना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। ये भक्ति भी एक गिफ्ट है, उस परमात्मा की कृपा हुई कि तेरे में भक्ति जगी, तू किसको याद करके वो भक्ति का रस ले पा रहा है, ये भी कृपा है, तुम्हारी वजह से नहीं है। ये बात समझ में आ रही? तो राम, वो जो राम का नाम है, पता कितनी बारी है गुरु ग्रंथ साहिब में? 2500 बारी राम का नाम मेंशन है गुरु ग्रंथ साहिब। तो बहुत, मैं आपको कृष्ण का नाम भी दे सकता हूँ, भक्त प्रहलाद का नाम भी है वहां पे, बहुत सारे कनेक्शन है। सिखिज्म और हिंदुइज्म मेरे नाम से तो एक ही है, दो कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो नानक को मानता हूँ। नानक कहते हैं एक कहूँ का, जब एक ही है तो दो कहां से मान लूं मैं? तो कमिंग बैक टू एक लास्ट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो लास्ट लाइन है, चीपे के घर जन्म लैला, ये तो मराठी है। गुरु उपदेश भैला संत के परसा नामार भेतुला। संत के प्रसाद, संत का प्रसाद क्या होता है भाई? आजकल तो आलू पूरी खाना, सड़क पे लगा के खाना खिलाओ। हाँ जी, संत का प्रसाद क्या होता है? हलवा। हाँ जी, संत का ब्लेसिंग क्या होता है? अच्छा, ये एक ही चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू सच सच बात करेंगे? शर्मा जी तो नहीं करेंगे? हैव यू बीन इन लव? हाथ तो खड़ा करना है। चल अभी हाथ नहीं खड़े होंगे। यस, हाथ नहीं खड़ा होंगे तो काम ना करो, ये तो अंदर की बात है। हाँ जी,
लव? एक प्रेम के रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? हाँ जी, अट्रैक्शन। वो तो बहुत से हो जाती है, अट्रैक्शन तो बदलती रहती है। अंदर अंदर ना और कुछ एडजस्टमेंट नहीं। हाँ, सोल। हाँ जी, ना ना सुनो बड़े ध्यान से। फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। You should start a new company. हाँ जी, what is most, जब तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो या बैठा हो और तुम उससे कुछ बात करना चाहो और वो मेंटली एब्सेंट हो, तो तुम रिश्ता कैसे रखोगे? अब ध्यान से सुनना, एक शब्द में रिश्ते की नींव होती है प्रेजेंस। Are you getting this? You can't have a relationship with somebody who's absent. Can you? है ही नहीं। सूरज के साथ रिलेशनशिप तो है ही नहीं। Your presence, you are present, the person is also present. दोनों का जो presence है, that creates the relationship. Are you getting this? Everybody? संत के प्रसाद, प्र means गहरा, स means वो, आर means eternal. What is the eternal thing जो आपके गुरु साहब आपको देते हैं कृपा में? वो देते हैं, गुरु साहब अपनी presence देते हैं. He gives you his presence so that you can build your presence. ये जो संस्था में देख रहा हूँ, ये गुरु साहब की वजह से ही तो है कि नहीं है? तो मीरा क्या करती थी? 5000 साल बाद, 200 साल पहले नहीं मीरा, 100-150 साल पहले, ऑलमोस्ट 5000 साल कृष्ण को हुए चले गए, लेकिन वो कृष्ण की प्रेजेंस कभी भी प्रकट कर देती थी, जहां चाहे प्रकट कर देती। अपने गुरु की प्रेजेंस, गुरु की एसेंस अगर आप क्रिएट कर सकते हो, और दैट इज प्रसाद। समझ में आ रही है? तो प्लीज, अगर आपके जीवन में आपका कोई गोल है ना, पैसे कमा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैवल कर लो, जो इच्छाएं पूरी कर लो, बट इफ यू आर एब्सेंट, यू विल नॉट एंजॉय योर ओन लाइफ. इफ यू आर एब्सेंट फॉर फूड, यू विल नॉट एंजॉय फूड. इफ यू आर एब्सेंट फॉर पर्सन, रिलेशनशिप, एनीथिंग, यू विल नॉट बी देयर, यू विल नॉट एंजॉय एनीथिंग. सो बी प्रेजेंट, वर्क ऑन योर प्रेजेंस. एक दो नहीं होना, तीन नहीं होना. गुरु नानक देव जी का मैसेज है, ये जो खंडित मन है, टूटा हुआ मन है, इसमें हजारों लाखों विचार चल रहे, इसको जोड़ के इकट्ठा करके एक में आ जाओ. तो इस टूटे हुए मन को बिगड़ने मत दो, गुरु साहब के साथ रहो, इनके ज्ञान में रहो, अवेयरनेस में रहो, और अंदर से अपनी प्रेजेंस पे काम करो. वर्क फॉर योर प्रेजेंस एंड यू विल गेट दिस लाइफ एज अ प्रेजेंट. आपके जीवन में जो भी घटना होगा वो तो घटेगा, लेकिन जीवन अपने आप में खिल सा जाएगा, एक प्रेजेंट की तरफ बन जाएगा. Are you getting this? Yes? Thank you for having me. देखो ना, दिख जाता जो joyful most of your life. Yes or no? कभी कभी आंसुओं के पीछे भी, कभी कभी किसी को मिस कर जाओ, कोई जीवन में ना रहे, दुख मनाना, आंसू आना का जरूरी मतलब नहीं होता कि आप अंदर से रहे. हाँ जी, भगवान कृष्ण को कैसा लगा होगा जब सारे के सारे यादव बस एक दूसरे को मार देते हो? अंदर से नहीं मिले, वो अंदर से टिके हुए, एकदम स्ट्रॉन्ग है. तो आपको अपनी प्रेजेंस पे काम करना है, so that no matter what happens outside, you're able to take care of it. Yes or no? Yes. That's the message. चाहे वो सनातन हो, हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, ये जो 6 शिंतोइज्म है, ताओइज्म है,
जो 6 ईस्ट के जो धर्म है इनकी कोर एक ही है, इनकी कोर फिलॉसफी एक ही है। वेस्ट की थोड़ी सी अलग है। वेस्ट में जो है उनका अगर गहराई में जाओगे तो वो भी खोद के एक वननेस आप उसमें निकाल लो, लेकिन ऊपर से वो अलग दिखते हैं। लेकिन ईस्ट में जो हो they only talk about one. Every religion, every community talks about one. कभी भूलना नहीं। कोई दिखे किसी का पैसा ज्यादा हो कम हो, किसी के कपड़े अच्छे हो कम हो, doesn't matter. इंसान है ना, हाँ जी, इंसानियत एक है, उस पे ध्यान दें। And I'm sure you will become a much larger personality. That is what I bless you with. So become a larger personality. ठीक है ना? Academy of Comparative Philosophy and Religion is not promoting any one particular faith, religion or philosophy. Comparative analysis is the way of Gurudev Dr. R.D. Ramade. And throughout our program, this stream will be the undercurrent in any function, any activity, any publication of ACPR. Especially since long, we were aspiring to have a great thinker on Sikhism, and especially our honorary secretary, Advocate L.B. Zedi. We tried many times, sometimes unfortunately dates didn't coordinate. But he would have been here, he would have been very happy by this event. Today is not there. But today's event is really, it might have pleased Gurudev Dr. R.D. Ramade. The comparative analysis, the way in which he has presented and has analyzed all our behavioral pattern in which either we are distracting from the thinking or we are not following a particular line in which we have to. So this eye-opening discourse by the international thinker of art of living, Sukhi Bhaiya ji, made all of us Sukhi because he himself is a point of Sukh. So, thank you very much. This will be a very memorable event in the annals of history of ACPR. Thank you very much, Bhaiya ji. So another personality I have to thank is the volunteers of ACPR, Art of Living, especially Shri Harshad sir, Harshad Patramani. He made it to happen today. He made it to happen today. Otherwise, we would not have had this great opportunity of having Sukhi Bhaiya ji here. So, to Mr. Harshad Patramani and other volunteers of Art of Living, on behalf of ACPR and on behalf of all of us here, I thank you very much, sir. Thank you very much for the students, staff, principals of MNRS College, RPD College, for attending this function. Thank you for activists of ACPR for their cooperation. Thank you, well done. Thank you very much.